Force and pressure. This is one of the first serious chapters in a part of science which is called physics. Physics have always been the most difficult among physics, chemistry and biology. So till 10th standard, you will always find physics as difficult, chemistry as medium and biology as relatively easy. So pay attention, focus. It's a good chapter, it's a fun chapter, but you will have to try your best to understand things. The first word we will understand is force. What is force? शादी में जाते हो तो आइसक्रीम है तो एक आइसक्रीम खा लिया, उसके बाद वो होस्ट आता है, बोले नहीं 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 एक और एक और, नहीं 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 एक और एक और, वो वाला फोर्स नहीं है ये. दिस फोर्स इज अ फिजिकल फोर्स. एंड हाउ डू यू डिफाइन अ फोर्स? फोर्स इज समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ एन एक्शन. Force is an action like picking things, opening things, shutting things, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling. Pick, keep it down. Open, close, hit, lift, push, pull, flick. ये सारी चीज एक टाइप का एक्शन है एंड ईच ऑफ दिस एक्शन रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज. ये हर एक एक्शन की वजह से चेंज आता है. किस चीज में? द चेंज कम्स इन स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन मतलब चीज हिल रही है या नहीं हिल रही है या बाद में हिलेगी, वो चीज में चेंज आता है. Can these terms be replaced with one or more terms? Picking, opening, closing, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling. ये सब चीज को एक नाम दे सकते हैं फिजिक्स में, which is called force. In science, the push or the pull on an object is called force. Thus, we can say that the motion imparted to object was due to the action of force. That's the definition of force. A push or a pull, the shortest definition. You see the photographs. When you try to stop the ball, the hands are applying force on the ball and stopping it. When you are playing hockey, the hands are applying force on the stick. The stick is applying force on the ball. Therefore, the ball runs faster and faster. Cricket में fielding कर रहे हो तो hands are applying force on the ball and trying to stop it. So somewhere you are pushing, somewhere you are pulling, somewhere you are increasing the speed, somewhere you are decreasing the speed. तो एक फास्ट बॉलर ने बॉल फेंका और तुम उसको डक करते हो या प्लेड करते हो तो यू आर रिड्यूसिंग द स्पीड बाय अप्लाइंग फोर्स थ्रू अ बैट. बट किसी ने बॉल फेंका और तुमने छक्का मारा तो यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड बाय यूजिंग फोर्स थ्रू द बैट. जब भी फोर्स की बात होती है तो मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स आर नेसेसरी एंड देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियोज इन फोटोग्राफ्स हियर. और हर एक में 2 ऑब्जेक्ट है. मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स आर नेसेसरी फॉर फोर्स टू कम इनटू पिक्चर. एक अकेली चीज से फोर्स पैदा नहीं होता. सो लेट्स सी दीज 2 women looks like that they are fighting, and when you fight with each other you push. Who is pushing whom? Force. Girl 1 is pushing girl 2 and girl 2 is pushing girl 1. That is how we say. और push एक टाइप का force है, धक्का देना. Look at this scenario. The cow does not want to go somewhere and the farmer is taking the cow somewhere. Therefore, farmer is applying the force or farmer is pulling the cow. But is it only one force? No, there is a second force. The cow does not want to go, so cow is applying force in opposite direction and cow is also pulling in other direction. तो दोनों जन एक दूसरे को खींच रहे हैं.
यहां पे दोनों जन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। फुदड़ी, જ્યારે ફૂદડી કરો तो કોના હાથ ઉપર પ્રેશર આવે, पर्पल लेडी के येलो लेडी? दोनों के हाथ पे प्रेशर आता है, और दोनों के हाथ छूट सकते हैं अगर फोर्स बहुत हो गया तो। धीरे घूमोगे, छोटा फोर्स, यू कैन कंटिन्यू, बट इफ यू रोटेट टू फास्ट द फोर्स विल इंक्रीज ड्रास्टिकली एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई फोर्स हाथ छूट जाएगा। But the fact remains that there are two objects necessary for force. You are standing on a road. Are you applying pressure or force? Think. You are just standing on a road. Answer is yes, you are applying force. You are applying force on the road. रोड के ऊपर फोर्स है तुम्हारे शरीर का. In which direction? Downward direction. Is there anybody else applying force? Yes. Road is strong, solid, hard. And this strong, solid, hard road is applying same force in opposite direction. Therefore, you are able to stand. So, there are always two types of opposite forces and there are always two objects. भले कभी कभी लगता है कि एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमेशा दो ऑब्जेक्ट होते हैं. Look at this diagram. A man standing behind a stationary car. कार हिल नहीं रही है, आदमी भी हिल नहीं रहा है, दोनों खड़े हैं. तो कार वर्सेस ह्यूमन में इज देयर एनी फोर्स? आंसर इज नो. बट द मैन टचेस द कार and starts to push the car. Now is there force between car versus man? Yes. कार वर्सेस ह्यूमन में फोर्स है. So what is the conclusion from this small experiment? The conclusion is you cannot apply force without touching. सोचने वाली बात है. टच नहीं करना है, कप उठा के दिखाओ. टच नहीं करना है, बॉल को किक मार के दिखाओ. बैट से बॉल को टच नहीं करना है लेकिन छक्का मार के दिखाओ. इम्पॉसिबल है. विदाउट कॉन्टैक्ट, टचिंग मीन्स विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर नॉट एक्शनेबल और नॉट पॉसिबल. तुम्हें फोर्स देना है तो तुम्हें कार को टच करना पड़ेगा. ફુદેડી રમવી છે તો એકબીજાના હાથને ફિઝિકલી ટચ કરીને પકડી રાખવું પડશે. ધક્કા મારने के लिए, गाय को खींचने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी. सो फोर्स हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट चाहिए, दो अलग टाइप के फोर्स होते हैं सामने सामने, एंड टच इज नेसेसरी. सो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर द फर्स्ट फोर्स टू कम इनटू प्ले. Thus, an interaction of one object with other object results in force between the two objects. तो दो ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से फोर्स पैदा होता है. Now forces are of a specific type. फोर्स एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्शन होता है. फोर्स हैज डायरेक्शन. तो दुनिया में कुछ चीजें ऐसी है जिसके अंदर डायरेक्शन होता है और कुछ चीजें ऐसी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता. इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर एज, योर आंसर विल बी 15. कैन आई आस्क द सेकेंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन? एज का कोई डायरेक्शन नहीं होता. बट इफ आई से हाउ फार डू यू लिव
from your school? How far do you live from your school? अगर तुम कहो I live 5 kilometer away from my school, I can ask you in which direction. So you can say north direction, northwest, southeast, etc. Or in direction of Vastrapur, direction of satellite. You can answer something. But age में direction पूछूंगा तो कोई आंसर ही नहीं है. तो वैसे फोर्स एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होता है प्लस डायरेक्शन मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, these two boys are pushing the box in opposite in same direction. मतलब पहला लड़का और दूसरा लड़का एक ही डायरेक्शन में बॉक्स को धक्का मार रहे. रेड वाला थोड़ा स्ट्रॉन्गर है तो 20 न्यूटन फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स. 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. और ब्लू वाला जो है थोड़ा सा यंग है, छोटा है, तो उसने 5 न्यूटन अप्लाई किया. तो बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ओवरऑल? 25 न्यूटन. The box is experiencing 25 न्यूटन्स फोर्स, इसलिए बॉक्स आगे जाएगा. बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आमने सामने धक्का मार रहे होते ये भाई साहब, 5 न्यूटन इस तरफ और जो स्ट्रॉन्गर लड़का है 20 न्यूटन इस तरफ. In which direction will the box move? The box will move in this direction because 20 force ज़्यादा है. So this boy will win. The blue boy will lose. Therefore the box will move in this direction. तो तुम कौन से डायरेक्शन से फोर्स देते हो वो बहुत ज़रूरी है. This is called a game tug of war, and in tug of war one team is applying force in this direction, the other is applying force in this direction. Basically they are pulling in their own direction to try to win the game. कौन जीतेगा? जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो जीत जाएगा. So forces applied on the object in the same direction add to one another. सेम डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऐड होता है. देखो 20 + 5 25. बट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो माइनस होता है. 20 - 5 15 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. So forces in same direction is added. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in same direction. तो देख लिया हमने. If two forces act in opposite direction, आमने सामने, then the net force acting on it is the difference between the two forces. Same direction में add, opposite direction में force दोगे तो overall कितना force लगा subtract करके पता चलता है. Let me show you a wonderful simulation. This simulation is available to you also. You can use it on Chrome on your laptop. This is a cart which has to be pulled. और जो ये कार्ट अपनी तरफ पुल करेगा सक्सेसफुली वो जीत जाएगा. Look at the sum of forces. 0 यहां पे. Sum of forces 0 because there is no force on the cart. मैं एक इंसान को लगाता हूं. When I have put a small boy, he can give 50 Newton force in his direction. अभी गो नहीं दबाया है इसलिए अभी वो फोर्स नहीं दे रहा है, बट जब फोर्स देगा तो 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड. ओवरऑल टोटल फोर्स 50 न्यूटन क्योंकि एक ही जन है. गो. द कार्ट हैज स्टार्टेड टू मूव.
फोर्स की वजह से हमेशा मोशन क्रिएट होती है एंड द ब्लू टीम विंस। रीसेट। ये भाई साहब को नीचे ले आते हैं, वापस फोर्स 0 हो गया, बड़े भाई साहब को रखते हैं ऊपर। ये 100 न्यूटन फोर्स दे सकता है। गो अगेन, फोर्स क्रिएट्स मोशन एंड ब्लू टीम विंस। सबसे बड़े भाई साहब को काम पे लगाते हैं, कहीं भी पकड़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। He is capable of giving 150 newtons. He starts to pull. The cart starts to move and blue team wins. But what will happen if I apply force in opposite direction also? अब लेफ्ट में 50 न्यूटन, राइट में भी 50 न्यूटन। सम ऑफ फोर्सेस का आंसर देखो 0। गो। नथिंग विल हैपन बिकॉज कार्ट के ऊपर 50 इधर और 50 उधर, तो ओवरऑल 0 हो गया, और 0 फोर्स में कोई चीज हिलती नहीं है। हंड्रेड, 250, 300, 350. When you are applying force in same direction, the total of the force is created. तो 50 plus 50 plus 100 plus 50, 150, टोटल 350 हो गया। गो, सारे पुल कर रहे हैं, कार्ड फटाफट पहुंच जाएगा एंड ब्लू टीम विंस। सो सेम डायरेक्शन, फोर्सेस आर एडेड, बट ये देखो ऑपोजिट फोर्सेस। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू टीम का 100 न्यूटन, राइट साइड पे रेड टीम का 150 न्यूटन। हु विल विन? रेड टीम, बिकॉज ओवरऑल डिफरेंस 150 और 100 का 50 न्यूटन है, विच इज ऑन राइट साइड। सो व्हेन आई से गो, द रेड टीम विल विन because blue team is not able to provide enough force. Red wins. अब कौन जीतेगा? अब ब्लू जीतेगी, क्योंकि ब्लू का फोर्स ज्यादा है रेड के कंपैरिजन में, एक्सेट्रा। So this is a game which you can play on your laptop to understand forces. Add and difference. Same direction, opposite direction. So we learned that force could be larger or smaller than the other or equal to each other. Force बड़ा छोटा हो सकता है या force आमने सामने equal हो सकता है। The strength of a force is usually expressed by its magnitude. Magnitude एक बहुत सिंपल मतलब है magnitude का, number. Magnitude एटले number. और मैं 5 एग्जाम्पल दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। What is the magnitude of your height? What is the magnitude of your age? What is the magnitude of your चश्मा का नंबर? What is the magnitude of your pocket money? And what is the magnitude of your marks? मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर। तो तुम्हारी हाइट का नंबर क्या है? तो मेरी हाइट का नंबर है 172 सेंटीमीटर। मेरी एज का मैग्नीट्यूड है 36 इयर्स। मेरे चश्मे का नंबर का मैग्नीट्यूड है 0। पॉकेट मनी का मैग्नीट्यूड है 500 और मैग्नीट्यूड ऑफ मार्क्स इज 90। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। What is the magnitude of the force? એટલે કેટલો ફોર્સ? 5 ન્યૂટન, 10 ન્યૂટન, 20 ન્યૂટન, 100 ન્યૂટન એક્સેટ્રા. પણ ફોર્સની અંદર બે વસ્તુ છે. फोर्स के अंदर दो चीज होती है और एज के अंदर एक चीज होती है।
क्रिकेट के शॉट में दो चीज होती है, बट बॉलिंग वाले बॉल फेंकने में एक चीज होती है। अब क्या है ये दो चीज एक चीज, दो चीज एक चीज? फोर्स के अंदर देयर इज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन्वॉल्व। मैग्नीट्यूड इज नंबर 10, 100 के 1500 या 150 न्यूटन फोर्स। और डायरेक्शन हो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट आ एंगल पर फलाना ठिकाना डायरेक्शन में। तो फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन एज होती है 1 साल 5 साल 500 साल, बट उसमें कोई डायरेक्शन होता नहीं है। क्रिकेट शॉट वर्सेस बॉलिंग, तो क्रिकेट शॉट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तुम सिर्फ जोर से मारोगे उससे कुछ नहीं होता, कौन से डायरेक्शन में कितना जोर से मार रहे हो, दैट्स क्रिकेट। बट बॉलिंग जिसमें पहला बॉटल जुड़ा हुआ नहीं हो ना, तो बॉलिंग में तुम एक ही डायरेक्शन में फेंकते हो बॉल, वो है ये, तुम कहीं पे भी नहीं फेंक सकते, बट मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है, जोर से फेंक सकते हो कम फेंक सकते हो, 10 न्यूटन और 100 न्यूटन। So force has two things, magnitude and direction, और ये दोनों से बहुत फर्क पड़ता है। एक बार मैंने एक फ्रेंड को कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है, प्लीज आके धक्का मार दे। तो फ्रेंड आया एक्टिवा पे, एक्टिवा पार्क की, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी में बैठा हुआ था, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मेरा स्टीयरिंग व्हील है, मस्त वो आगे से आया और भाई साहब ने धक्का देना शुरू कर दिया। मैंने लगा क्या कर रहा है? तो बोले तूने बोला ना आके धक्का दे। द डायरेक्शन इज रॉन्ग, गाड़ी को पीछे से धक्का देना पड़ता है तो आगे से स्टीयरिंग घुमा सकते। सो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इस बार दोस्त का डायरेक्शन गलत था, मैंने बोला पागल पीछे जा और पीछे से धक्का दे। दोस्त बोला ओके, तो दोस्त चला गया गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे जाके खड़े रह गया और एक उंगली से ऐसे धक्का दे रहा है। बोला क्या कर रहा है? तो बोला आई एम पुशिंग द कार, बट द पुश हैज वेरी लेस मैग्नीट्यूड। तो इस बार डायरेक्शन भले सही है, बट पागल दम लगा के हईशा नहीं ऐसे पुश कर रहा है एक उंगली से। तो मैंने उसको बोला पागल दोनों हाथ से दम लगा के पूरे शरीर का फोर्स लगा के पुश कर। ओके, तो उसको समझ में आया कि उसे ये करना है। He started pushing with a lot of magnitude and correct direction. So direction से बहुत फर्क पड़ता है और magnitude से भी बहुत फर्क पड़ता है। Does it mean that net force on an object is zero if two forces acting on it in opposite directions are equal? Opposite direction में लगने वाले दो फोर्स अगर इक्वल है तो नेट फोर्स जीरो है। ऑफ कोर्स, एंड लुक एट दिस सिमुलेशन विच वी सॉ, नेट फोर्स में, चलो रिटर्न आ जाओ, इधर आओ, 100 न्यूटन लेफ्ट में 100 न्यूटन राइट में, sum of forces 0. So remember, if two opposite forces are same, the resulting force is 0. Will it lead to any change? No. गो दबाने के बाद भी कोई चेंज नहीं होगा, काट वहीं का वहीं रहेगा। In general, more than one force may be acting on an object, however the effect of the object is due to the net force acting on it. बहुत सारे फोर्सेस होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बट फाइनली उनका जब टोटल करते हो और जो डायरेक्शन में बचा हुआ फोर्स है, बॉल वहीं भागेगा। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे फोर्सेस कैसे एक्ट कर सकते हैं। एक मेटल का बॉल लिया
और उसमें 4 हुक थे। वो चारों हुक पे रस्सी बांध दी और 4 जन लगे खेलने, 4 लड़के, 4 बच्चे। दे स्टार्टेड टू पुल। My drawing is very bad. He's looking like an ant, sometimes like a cockroach. So बाप रे। तो सब अपने अपने डायरेक्शन में उसको खींच रहे। दिस इज कॉल्ड टू मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये भाई साहब 10 न्यूटन लगा रहे इस डायरेक्शन में, ये लगा रहा है 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में, ये लगा रहा है इस डायरेक्शन में 3.5 न्यूटन, और ये लगा रहा है આ બધાનું ટોટલ ડિફરન્સ કરીને નેટ फोर्स खबर पड़े। और नेट फोर्स जो डायरेक्शन में होगा बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगा। व्हाट कैन अ फोर्स डू? तो फिजिक्स में शॉर्टेस्ट आंसर व्हाट can a force do is force can change the state of motion. What can force do? Force can change the state of motion. और state of motion मतलब क्या? State of motion मतलब क्या कोई चीज हिल रही है या नहीं हिल रही है। मूविंग, नॉट मूविंग। नॉट मूविंग को कहते हैं स्टेशनरी और मूविंग को मूविंग। और उसमें चेंज लाने का मतलब है कि मूविंग चीज को स्टेशनरी बनाना। तुमने कभी किया है? हजारों लाखों बार किया है। मूविंग चीज को स्टेशनरी बनाना मतलब साइकिल को ब्रेक मारना। तुम साइकिल चला रहे थे, फ्रेंड ने बोला ये पिंटू इधर आ, तो तुमने ब्रेक्स मारी और तुम रुक गए। यू स्टॉप द साइकिल। You changed the state of motion of the cycle. How? By applying force. और साइकिल में मूविंग से स्टेशनरी के लिए कहां से फोर्स अप्लाई कर सकते हो? ब्रेक्स। तो अप्लाइंग ब्रेक्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच यू अप्लाइड टू चेंज मूविंग टू स्टेशनरी। स्टेशनरी टू मूविंग એટલે કોઈ વસ્તુ હલતી નહોતી પણ એ હલવા લાગી। तो स्टेशनरी टू मूविंग इज ये पेन। फिलहाल पेन पड़ी है स्टेशनरी, बट मैंने पेन को उठाया और मैं उससे खेलने लगा। द पेन बिकेम मूविंग। माई हैंड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द पेन एंड हेंस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पेन चेंज्ड फ्रॉम स्टेशनरी टू मूविंग। गोल्फ। गोल्फ में बॉल स्टेशनरी होता है, लेकिन जब फटका पड़ता है तो इट स्टार्ट्स टू मूव, और वो फटके को बोलते हैं फोर्स। और क्या हो सकता है फोर्स से? स्लो चीज फास्ट हो सकती है। तो પેલી ચકરડી ગાર્ડનમાં નાની હોય, મેરીગો રાઉન્ડ હોય કે ચકડોળ હોય, તો એ ધીમું ધીમું ચાલતું હોય, પણ કોઈ આવીને જોરથી થોડોક ધક્કો મારે તો એ ફાસ્ટ થઈ જાય। दैट इज कॉल्ड स्लो टू फास्ट। सिमिलरली फास्ट टू स्लो भी हो सकता है। यू कैन रिड्यूस द स्पीड। डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, नॉर्थ टू साउथ जा सकता है, वेस्ट टू नॉर्थ जा सकता है। स्पेशली क्रिकेट में बॉलर ने बॉल फेंका इन द साउथ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में बॉल जा रहा था, तब बैट का फटका पड़ा और बॉल स्टार्टेड टू गो इन वेस्ट डायरेक्शन। सो इट इज पॉसिबल that by applying force you can change the direction of the ball. दूसरी चीज, बॉल जब बॉलर ने फेंका तो 20 माइल्स पर आवर की स्पीड से फेंका था, लेकिन जब तुमने फटका मारा तो उसकी स्पीड बढ़ गई 30 माइल्स पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, जो भी है। स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्लो टू फास्ट हो सकता है, फास्ट टू स्लो हो सकता है, मूविंग टू स्टेशनरी हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है। फोर्स लगाना पड़ता है उसके लिए। तो
स्टेट ऑफ मोशन क्या है? द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो और किस स्पीड में जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, मतलब स्टेशनरी. बहुत सारे स्टेट्स होते हैं. स्टेट ऑफ मोशन में मेनली दो टाइप के स्टेट्स होते हैं. एक होता है स्टेशनरी. સ્ટેશનરી એટલે પેન પેન્સિલ ને રબર બેન્ડ નહીં. સ્ટેશનરીની દુકાન નથી. સ્ટેશનરી मतलब મોશનલેસ. मोशनलेस मतलब जीरो स्पीड, और जीरो स्पीड मतलब एट रेस्ट. सावधान, विश्राम. विश्राम, रेस्ट. नो स्पीड, नो मूवमेंट, मोशनलेस, स्टेशनरी. ये सब वर्ड्स का एक ही मतलब है, कोई चीज नहीं हिल रही है. और उसका दूसरा ऑप्शन होता है मूविंग. और मूविंग थिंग्स के पास होती है स्पीड और डायरेक्शन दोनों. कौन से डायरेक्शन में क्या स्पीड से कोई चीज भाग रही है, दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन. तो लास्ट सेंटेंस पढ़ो तो कंक्लूजन है, एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन. तो स्टेट ऑफ मोशन आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नॉट मूविंग एंड मूविंग. सोचो कोई तीसरा चीज पॉसिबल है? तुम्हारे रूम में कोई भी एक ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लो, उसको देखो और सोचो मूविंग और नॉट मूविंग के सिवाय कोई थर्ड ऑप्शन है जिसमें तुम कैटेगराइज कर सकते हो. यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल ऑप्शन. अब एक पंखा है जिसका स्टेट ऑफ मोशन है स्टेशनरी, वो चालू नहीं है. और एक पंखा है जो चालू है, मतलब इन मोशन. कैन यू अप्लाई फोर्स एंड चेंज द स्टेट ऑफ मोशन? यस. तुम स्टेशनरी पंखे को पेंसिल लेके हाथ से मारोगे तो वो हिलने लगेगा, मतलब यू चेंज्ड द स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम स्टेशनरी टू मूविंग. और चालू पंखे में नटखट कन्हैया की तरह क्रिकेट का बैट बीच में लगाओ, आगे जो होगा वो तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है. मम्मी पापा की डांट तुम्हें खानी है, मुझे नहीं. बट मोशन वाला फैन विल स्टॉप. In both the cases you applied force. In one case stationary became moving, moving became stationary. So you change in the state of motion comes because of force. तो एक सवाल है, what can force do? फोर्स देके तुम क्या कर सकते हो? उसका पहला आंसर हमने सीखा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. अब दूसरा आंसर देखेंगे, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ये रहा ऑब्जेक्ट, इस पे खास कोई फोर्स है नहीं, इसका शेप देख लो. अब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, इसका शेप चेंज हो गया. व्हेन आई अप्लाई फोर्स द शेप चेंजेस. सिंपल. वायर है, आई कैन चेंज इट्स शेप द वे आई वांट बाय अप्लाइंग फोर्स.
So that is the next thing we will see and some silly examples. These are the difficult नहीं है. લોટ બાંધતી વખતે મમ્મી લોટનો શેપ ચેન્જ કરી શકે છે पर हाथेથી फोर्स આપવો जरूरी है. क्ले से खेल रहे हो तो क्ले का शेप चेंज हो जाता है. स्प्रिंग वाली सीट के ऊपर जब बैठते हो तो स्प्रिंग का शेप चेंज होता है. समटाइम द नॉर्मल स्प्रिंग इज लाइक दिस. बैठने के बाद द स्प्रिंग बिकम्स क्लोजर टू ईच अदर, द शेप चेंजेस. रबर बैंड, नॉर्मल साइज ऑफ रबर बैंड इज दिस, बट उसको खींचोगे तो रबर बैंड लंबा हो जाता है. बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द शेप. एक स्केल राखी છે લોખંડની સ્કેલ, तो ये सीधी હતી पर એના ઉપર વચ્ચે વજન મૂક્યું, हमने बहुत बड़ा वजन रख दिया तो स्केल बेंड हो गई. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन शेप. सो देर आर लिटरली thousands of examples available in day-to-day life, but remember, what can a force do? A force of an object may change its shape. तो ये देखो समरी हमने, ये टेक्स्ट बुक की है. फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, न हलती वस्तु ने हलावવું. फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्लो ने फास्ट, फास्ट ने स्लो. फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, साउथ में आओ तो बॉल वेस्ट में छक्को मार्यो. फोर्स में ब्रिंग अबाउट चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. And last, may cause some or all of these changes or effect. આ બધું એક સાથે પણ થઈ શકે. સ્લોનું ફાસ્ટ બી થયું, પછી ફાસ્ટનું સ્લો થઈ ગયું, ડાયરેક્શન બદલાઈ ગયું, શેપ બદલાઈ ગયું, બધું જોડે બી થઈ શકે. It depends on how and what kind of force you are applying. So what can force do? Change the state of motion, change the shape of the object, change the direction of the motion. And force can make moving things stop, or it can stop things to move. Now we will divide forces into two types. Forces can be categorized into two varieties. Contact forces, જેમાં ટચ કરવું જરૂરી છે, અને નોન કોન્ટેક્ટ ફોર્સિસ, જેમાં ટચ કરવું જરૂરી નથી. કોન્ટેક્ટ फोर्सेस का पहला पार्ट है मस्क्युलर फोर्स, ताकत. ये एनिमलनी ताकत होय के ह्यूमन बीइंग नहीं, बट मस्क्युलर फोर्स इज द फोर्स विच यू गिव थ्रू द मसल्स ऑफ योर बॉडी और मसल्स ऑफ एन एनिमल्स बॉडी. Muscular force. Second contact force is friction. The force responsible for changing the state of motion of the object in all these examples is friction. હવે friction શું છે? એક બોલને ગ્રાઉન્ડ ઉપર ક્રિકેટનો શોટ માર્યો, ball will finally stop. ઘણી બધી વાર ફિલ્ડર હોતો નથી, અહીંથી બોલને શોટ માર્યો, બોલ ગયો પણ એ સ્લો થતો ગયો અને અચાનક અહીંયા સ્ટોપ થઈ ગયો. ક્યું સ્ટોપ हो गया? Because there are two types of forces acting on the ball. The first force was 50 newtons from the bat on the ball. तो 50 न्यूटन का फटका पड़ा, बॉल चला भागने. लेकिन जब बॉल आगे भाग रहा है ग्राउंड पे तो एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये ऑपोजिट फोर्स का नाम है फ्रिक्शन, जो कम होता है 5 न्यूटन और ये है 50 न्यूटन. तो ये 50 न्यूटन के अगेंस्ट में ये 5 न्यूटन काम कर रहा, इसलिए बॉल जाता तो है बट धीरे 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 वो स्लो हो जाता है. 50 because of friction becomes 45, 45 becomes 40, 40 becomes
35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0। और 0 फोर्स में कोई चीज हिलती नहीं है, तो बॉल बन गया स्टेशनरी। जब पेंसिल या पेन लेके तुम पंखे को टंग करोगे तो वो घूमेगा, बट विल इट गो ऑन फॉर एवर? नो, इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ऐसे कैसे पंखा रुक जाता है थोड़ा घूमने के बाद? क्योंकि देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनसाइड इज मशीनरी। सो वॉट एवर यू मूव विल फाइनली स्टॉप बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन। टेबल के ऊपर एक पेंसिल को रोल करो तो पेंसिल आगे जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम द पेंसिल विल स्टॉप, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो चीजों को सिर्फ और सिर्फ स्टॉप करने के लिए काम करता है। फ्रिक्शन हमेशा चीज को स्टॉप करता है, कभी भी स्टार्ट नहीं करता। सो सेकेंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन, कि जे अड़े तो ये वस्तु स्टॉप થઈ જાય। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में 3 टाइप है। फर्स्ट इज मैग्नेटिक। मैग्नेट को एक दूसरे के लिए या तो वो चिपक सकते हैं या दूर भागते हैं। तो यहां पे रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये मैग्नेट ऐसे दूर भाग रहा है, और यहां पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। एंड दिस दूर भगाना या नजदीक ले जाना इज अ नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें एक्चुअल टच करने की जरूरत नहीं है। द फोर्स कैन एक्ट विदाउट टचिंग। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? दैट विल सी इन लेटर ऑन चैप्टर, आगे आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है उसके ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ચાર્જ કરીને આપણે મોબાઈલ ને બેટરી એવી રીતે ઓબ્જેક્ટને બી ચાર્જ અપાય, પણ બહુ જ નાનો અને ટેમ્પરરી ચાર્જ હોય, वो नहीं स्केल से घिसते हैं। देन यू ट्राई टू अट्रैक्ट द पेपर पीसेस, इट विल गेट स्टक। सिमिलरली 2 स्ट्रॉ लो, स्ट्रॉ, और वो दोनों स्ट्रॉ को सिर पे घिसो, फिर एक को लटका दो और दूसरे को हाथ में लो, they will get attracted to each other, or sometimes it will go away, they will repel each other। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्जन स्ट्रॉ मैग्नेट की तो होती नहीं है, लेकिन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज बिटवीन अ चार्ज्ड बॉडी, या एक चार्ज और दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी, या दोनों चार्ज्ड बॉडी। एंड द थर्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी, अर्थ का एकमात्र काम है कि हवा में लटकती हुई चीजों को नीचे खींचना। तो अगर मैं प्लेन से गिर जाऊं या स्काई डाइविंग के लिए जंप मारूं तो मैं अपने आप नीचे गिरता हूं। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग मी डाउन, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स के लिए पृथ्वी को मेरे साथ कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, टच करने की जरूरत नहीं है। 200 किलोमीटर ऊपर भी मैं हूं तो पृथ्वी मुझे खींचती है, एंड दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो मैग्नेटिक फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक forces are non-contact forces, and gravitational force, yeah, gravity is a non-contact force. So this chart has to be by heart, and every single one you have to understand. मैं example लिखूंगा, a man is pushing the car, which kind of force? आंसर आएगा contact force। contact force में कौन सी टाइप का फोर्स? muscles। So the man pushed the car started and car is going। अचानक engine बंद हो गई।
तो इंजन बंद हुई इधर, लेकिन कार रुकी इधर। ऐसे कैसे? बंद इंजन में कार आगे जा सकती है? जा सकती है थोड़ा बहुत, तो फिर बाद में स्टॉप क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जिसने कार को स्टॉप किया वो कहाँ है? वो है टायर और रोड के बीच में। तो रोड स्लोज डाउन द कार, इसलिए इंजन हमेशा चालू रखनी पड़ती है। तुम चालू जर्नी में इंजन बंद नहीं कर सकते, कार बंद हो जाएगी। कार विल स्टॉप टू मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। So I'll give such examples in quiz and you have to decide what kind of forces are acting. So muscular, friction, gravitation, and the next topic is pressure. फोर्स और प्रेशर दो अलग चीज। फोर्स एंड प्रेशर आर टू डिफरेंट थिंग्स। और प्रेशर डेंजरस होता है, फोर्स इनोसेंट होता है, प्रेशर डेंजरस है। कैसे? बॉल पेन को लो, हाथ के ऊपर रखो एंड अप्लाई लिटिल बिट ऑफ प्रेशर। कर सकते हो? एक दो, थोड़ा सा लगेगा बट इट इज ओके। क्वेश्चन, हु इज अप्लाइंग फोर्स? माई लेफ्ट हैंड। फोर्स is applied on what? Force is applied on my right hand. You are applying force through which item? Ball pen. तो मेरा left hand is applying force on the right hand through a ball pen. ये contact force है कि non contact? Touch, contact. Muscular या friction? मस्कुलर, या मसल्स यूज हो रहे। तो दिस इज अ कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्स वेर आई एम पुटिंग प्रेशर ऑन माई हैंड मूव्स, देर इज चेंज इन द शेप ऑफ द हैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब हो रहा है। ये सब चीजों में प्रेशर कहां है? प्रेशर मतलब कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है। माई हैंड हैज अ बिगर एरिया, द बॉल पेन सर्कल हैज अ स्मॉलर एरिया। तो कांटेक्ट में कितना एरिया है? इतना सा सर्कल। प्रेशर का डेफिनेशन है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मैं मेरे हाथ पे 20 न्यूटन फोर्स दे रहा हूं, 20 न्यूटन फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन माई हैंड। एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस स्मॉल सर्कल। और इसका मैं एरिया वेरिया कैलकुलेट कैसे करने का उसमें झंझट में नहीं पड़ रहा हूं, मैं इसको 1 कहता हूं। 1 एरिया, तो 20/1 प्रेशर इज 20। ये देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये प्रेशर 20 है। ट्रूथ और डेयर खेलते हो ना, उसमें डेयर देने का कि ये चीज जो मैं कर रहा हूं वो करके दिखा, बट पेन को उल्टा पकड़ना है। इम्पॉसिबल। जो मैं ये खेल रहा था वो तुम ऐसे नहीं कर सकते, लग जाएगा। इट इज टू शार्प। यू कैन डू इट लाइटली, बट जोर जोर से जो ऐसे कर रहे थे वो नहीं कर सकते। क्यों? फोर्स तो सेम है। एक, यू आर नॉट चेंजिंग द फोर्स। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज द बॉल पेन when it hits like this, the area is larger, but when the ball pen hits like this, तो ये एरिया छोटा है।
फोर्स सेम है, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो वही है बट एरिया कम हो गया है, 1 की जगह 0.1 हो गया। तो ये एरिया 1 है तो ये उससे छोटा है 0.1। तो 20 अपॉन 0.1 मतलब 200, मतलब ज्यादा प्रेशर। कम प्रेशर में मेरे हाथ को कोई नुकसान नहीं होगा, बट यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो ये निब अंदर घुस जाएगी और लगेगा। दैट इज प्रेशर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एक હેવી બેગને પોતાના ટકલા ઉપર બેલેન્સ કરવાની ટ્રાય કરો तो डिफिकल्ट है, बिकॉज जो कांटेक्ट एरिया है वो कम है और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। इसलिए कूली क्या करता है, कूली अपने टकले के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ रखता है और इसकी वजह से कांटेक्ट एरिया बिकम्स मोर, एंड व्हेन कांटेक्ट एरिया बिकम्स मोर द प्रेशर reduces and things become easy. બીજો એક સિમ્પલ, આ તો ઘરે બી કરાય, 2 3 4 5 કિલો વજન લો, બટાકા નાખો, કાંદા નાખો, જે કરવું એ કરો અને એક થેલીમાં ભર દો, ગાંઠ માર દો। હવે આ થેલીની અંદર એક થ્રેડ પાસ કરો, સ્ટ્રોંગ થ્રેડ દોરો, અને બીજા કેસમાં આ વજનવાળી થેલીમાંથી બાપુજીનો બેલ્ટ પાસ કરો અને બંનેને ઉપાડીને જુઓ કે કયું ઇઝી છે। बेल्ट से उठाना इजी है, थ्रेड से उठाना डिफिकल्ट, बिकॉज 5 किलो चीज जब उठाते हो तो फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी अपना कमाल दिखा रही है और फोर्स उसको नीचे खिले, नीचे रख नीचे रख नीचे रख नीचे रख, कांस्टेंट। बट तुम नहीं रखोगे, तुमने उठा के रखा है, बट उठा के रखने में द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन योर हैंड, तुम्हारे हाथ और स्ट्रिंग के बीच में एरिया इज लेस, देयरफॉर प्रेशर इज मोर, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट। पण बेल्ट थी पकड़्यो होय तो बेल्ट नो एरिया વધારે છે એટલે પ્રેશર ઓછું થઈ જાય, देयरफॉर इट इज इजी। स्कूल बैग જ્યારે આખી બુક્સ થી ભરેલી હોય તો વજન વધી જાય। સ્કૂલ બેગના જે સ્ટ્રેપ્સ હોય એ હંમેશા જોજો બ્રોડ હોય, પતલા સ્ટ્રેપ વાળી સ્કૂલ बैग લેવાની नहीं, बिकॉज पतले स्ट्रैप्स होंगे तो वो एरिया कम होगा और एरिया कम मतलब प्रेशर ज्यादा, तुम्हारे शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर की वजह से दुखेगा। ब्रॉड शोल्डर, मोर एरिया, लेस प्रेशर, इजी टू कैरी। दैट्स द स्टोरी ऑफ प्रेशर, एंड प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। There are innumerable examples which you can give, और साइंस में इसको बोलते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फोर्स इज इनवर्सली, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन याद है चैप्टर मैथ्स में। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। And pressure area are inversely proportion, more area less pressure, less area more pressure।
तो अब लास्ट एग्जाम्पल देता हूं। ये भाई साहब हथौड़ी लेके क्या कर रहे हैं, देखो खिल्ली ठोक रहे। तो खिल्ली ठोकने के लिए दिस इज द वॉल, this is the nail and this is the hammer. Wall, nail, hammer. कभी भी किसी को भी खिल्ली ठोकते हुए देखा है कि उसने उल्टी खिल्ली पकड़ी? नहीं, ऐसे ही पकड़ते हैं। Why? Because say hammer can provide 100 Newton force. Now this 100 Newton force hits the head and that force is transferred to this area between the wall and the nail. एरिया कम है मतलब प्रेशर ज्यादा, नेल अंदर चला जाएगा। बट उल्टा पकड़ के हथौड़ा मारोगे तो एरिया ज्यादा है, और एरिया ज्यादा मतलब प्रेशर कम। दिस नेल विल नेवर गो इनसाइड द वॉल। सो लेस एरिया क्रिएट्स मोर प्रेशर, उतना याद रखना। प्रेशर कैन ऑल्सो बी एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, और उसका सिंपल सा एग्जाम्पल इज दिस। एक ट्यूब में नीचे बलून लगा दो एंड फिल लिटल बिट ऑफ वाटर, यू विल सी द बलून बल्ज अ लिटल। बलून थोड़ो फुगाई जाए, मोटो थी जाए। बट पानी का लेवल बढ़ा दो तो कम पानी में इतना बल्ज है, ज्यादा पानी में द बल्ज विल इंक्रीज। वाई डिड द बल्ज इंक्रीज? बिकॉज नाउ देर इज मोर वाटर and more water means more pressure. कम पानी कम प्रेशर, ज्यादा पानी ज्यादा प्रेशर। डीप में स्विमिंग करना डेंजरस होता है, बट डीप मतलब कितना डीप? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्विमिंग पूल डीप, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 to 10 kilometers deep. When you are swimming in swimming pool versus a sea versus an ocean, there is a difference. The difference is in pressure. तुम जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। किसका प्रेशर? और प्रेशर लिटरली ये होता है दबाव। दिस इज कॉल्ड अप्लाइंग प्रेशर, दबाव। पानी का प्रेशर, लिक्विड प्रेशर। तो तुम्हारे शरीर के ऊपर जितना भी पानी है उसका वजन तुम्हारे सिर पे आ रहा है। इफ यू गो डीपर देर इज मोर वाटर ऑन टॉप ऑफ योर हेड। तो तुम्हारे शरीर के ऊपर ज्यादा पानी है मतलब वो पानी का प्रेशर ज्यादा है, एंड यू कैन फील इट। इट इज डिफिकल्ट टू स्विम। अरे वजन मुकी दी तुझे शरीर पर, बाप रे। और बहुत डीप चले जाओगे तो मर सकते हो, बिकॉज इट्स लाइक गेटिंग ट्रैप्ड बिलो अ माउंटेन। તમારા પર પહાડ મૂકી દે તો તમારી શું હાલત થાય? પિચુક ચગદાઈ જાઓ। તો બહુ ડીપ જતા રહો તો પાણીનું એટલું બધું વજન છે તમારા પર કે તમે પીસાઈ જાશો મચ્છરની જેમ। એન્ડ ધીસ ઇઝ કોલ્ડ પ્રેશર એક્સર્ટેડ બાય અ लिक्विड। इतला माटे जब डीप डाइव करते हैं ओशन में तो वो सूट पहनते हैं, स्कूबा डाइविंग सूट होता है स्पेशल, एंड दैट स्पेशल सूट इज स्ट्रॉन्ग एंड इट अवॉइड्स अ सिचुएशन वेर यू आर इन ट्रबल। पर सादू स्विमिंग करते हो तो चड्डो पहरीने पड़वानुं, कोई सूट की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें प्रेशर कम होता है। सो मोर वाटर मोर प्रेशर, बट दैट मोर वाटर शुड बी ऑन योर हेड, above your head. Liquids also exert, ये तो हमने देखा कि liquid is exerting pressure top and bottom का, तुम्हारे ऊपर।
પણ લિક્વિડ જે કન્ટેનરમાં ભરેલું હોય એમાં साइडમાં भी प्रेशर આપે છે. तो ये बॉटल भरी है, इसके नीचे बलून नहीं है, यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे साइड में बलून है, वो बलून भी बल्ज हो जाता है. मतलब देर इज प्रेशर ऑन साइड वॉल्स ऑल्सो. द सेकेंड वे टू लुक एट इट, बॉटल को पानी से भरने के बाद 2-3 होल कर दो तो वाटर विल फ्लो आउट विथ लॉट ऑफ फोर्स बिकॉज देर इज अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर. और ये डाउनवर्ड प्रेशर की वजह से यहां भी प्रेशर होता है वॉल्स पे. सो बेसिकली लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो सिंपल टर्म में बताऊं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. बंद बॉटल ની અંદર એક ડાઈસ રાખેલું છે, ડાઈસ. બંધ બોટલ ની અંદર આટલા સુધી પાણી ભરેલું છે અને બંધ બોટલ આની અંદર કઈ નથી, હવા છે. Where is the pressure and force exerted by the objects? તો સોલિડ મટીરિયલ હોય, સોલિડ એટલે બોટલની વાત નથી કરતા, અંદર શું છે સોલિડ, અંદર શું છે લિક્વિડ, અંદર શું છે ગેસ. સોલિડ ઓનલી એક્ઝર્ટ પ્રેશર ઇન ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન. તો આટલા જ પોર્શન પર પ્રેશર છે, બાકી સાઇડ વોલ્સ અને ટોપ પર કોઈ પ્રેશર નથી. પણ લિક્વિડ હોય તો લિક્વિડ એક્ઝર્ટ્સ પ્રેશર ઓન ધ વોલ્સ ઓલ્સો એન્ડ ધ બોટમ. એટલે લિક્વિડ ચારે બાજુ પ્રેશર આપે છે, પણ ઉપર કોઈ પ્રેશર નથી. જ્યાં પાણી હોય ત્યાં પ્રેશર, ઉપર ખાલી છે તો નો પ્રેશર. પણ જો ગેસ ભરેલો હોય તો ગેસ 360 डिग्री लिटरली चारों तरफ से प्रेशर देता है इन ऑल डायरेक्शंस. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. 9th में वापस आएगा. सॉलिड જે વસ્તુમાં હોય એમાં નીચે ખાલી પ્રેશર આપે, લિક્વિડ જેમાં ભરેલું હોય એમાં ચારે બાજુ બોટમ એન્ડ ધ વોલ્સ, અને ગેસ 360 ડિગ્રી એવરીવેર ઇટ ક્રિએટ્સ પ્રેશર. પ્રેશર એક જાતનો ધક્કો છે, પુશ છે. સો gases to exert pressure on the walls of the container. જે વસ્તુની અંદર ગેસ છે એ પ્રેશર આપે છે, અને જે વસ્તુની અંદર લિક્વિડ છે એ બી વોલ્સ ઉપર પ્રેશર આપે છે. તો ડેમ જ્યારે बनावे तो डैम का एक वॉल होता है और उसके दूसरे तरफ पानी भर जाता है, and that water is all the way down behind the wall. This water is exerting pressure on the wall of the dam. Therefore dam walls are made thick. કારણ કે જ્યારે પાણી ભરાશે, આપણે કીધા પાણી શેના ઉપર છે, તો પાણી તો જમીન પર છે. પાણીનું વજન કોને લાગે? જમીનને લાગે. પણ એવું નથી. એક ટ્રક પાર્ક કરો તો ટ્રકનું બધું વજન જમીન પર છે. ડેમની વોલને કાંઈ ફરક નથી પડતો. સોલિડ છે ટ્રક, પણ એની જગ્યાએ ડેમની વોલની સાથે સાથે લિક્વિડ ભરી દો તો ડેમ વોલ વિલ એક્સપિરિયન્સ લોટ ઓફ પ્રેશર અને ડેમ વોલ પડી જશે. तो कंक्लूजन था कि गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. इसका मतलब आवर एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर. व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड ऑन द प्लेनेट, પછી તમે બિલ્ડિંગની અંદર હો કે બહાર રસ્તા પર, તમે ક્યાંય બી ફરો છો, બેસો છો, ખાઓ છો, પીઓ છો, નાચો છો કે ગાઓ છો, તમારા માથાની ઉપર જેટલી બી હવા છે એ બધી હવાનું વજન તમારે સહન કરવું પડે છે.
तो बाजू में भी हवा है, इधर भी हवा है, चारों तरफ हवा है, बट जो हवा तुम्हारे सिर के ऊपर है, इतनी हवा इज एक्सर्टिंग प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हवा का दबाव. અને આ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર સેમ સિચ્યુએશન ઓશનની અંદર થાય. Oceans are filled with water, and when you go and do scuba diving, તો તમારા શરીરની ઉપર જેટલું પાણીની કોલમ છે એ બધું પાણીનું વજન તમારા ઉપર આવશે અને હવામાં હવાનું વજન આવશે. This is called atmospheric pressure. This is called pressure of liquid or water pressure. This is much higher. इसमें मरने के चांसेस है. ये हल्का होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So what is atmospheric pressure? There is air all around us, and this envelope of air is called atmosphere. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface, and the pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. તો મારા માથાની ઉપર જેટલી બી અને શોલ્ડર અને માથું જે નીચે છે એ કંઈ નહીં. હું સૂઈ જાઉં તો આખા શરીર, તો બેઠો હોઉં તો શોલ્ડર અને માથા પરની કોલમનું વજન આવે મારા પર. હું સૂઈ જાઉં તો થોડું પ્રેશર વધી જાય કારણ કે મારો એરિયા વધી ગયો. બટ દેર ઇઝ એર પ્રેશર ઓન માય બોડી, એન્ડ પ્રેશર ઇઝ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા. સો લુક એટ ધીસ બોય, he is holding a column of air on his head. આ હાઇપોથેટિકલ છે, પણ દરેકના માથા પર હવાનું પ્રેશર છે. કેટલું પ્રેશર છે? સાયન્ટિસ્ટ को पूछा. The force due to air in the column of height of atmosphere on an area of 15 by 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg or 2250 Newton. कहना क्या चाहता है? ये कह रहा है कि તમારું માથું જે હોય નોર્મલ એવરેજ આ એરિયા એ 15 by 15 સેન્ટીમીટર્સ ગણવાનું. 15 by 15 સેન્ટીમીટરનું સ્ક્વેર, અને આ 15 by 15નું સ્ક્વેરની ઉપર જેટલી પણ હવા છે એને લીધે જેટલું બી ડાઉનવર્ડ પ્રેશર છે એનો ફોર્સ જો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ that is equal to 225 kilograms. એટલે literally your body is holding on your head 225 kgs 24/7 from birth till death. જન્મથી તે મર્યા સુધી માથા ઉપર 225 કિલોનું વજન લઈને આપણે ફરીએ છીએ. અને જો માથું મોટું હોય જેનું તો એને વધારે વજન આપે. આટલું બધું વજન લાગે જ તમને? Do you think you can carry even 50 kgs? Impossible. You cannot. But still, this is science. You are born with this. And because you are born with it, you cannot feel it. And you are not crushed under this force. The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies also equal to the atmospheric pressure and balance pressure from outside. Means we are a very, very intelligent design. If somebody is pushing from outside with 225 kilogram of force, our body is pushing from inside with equal amount of force. And when two equal amount of force are pushing each other, we have already seen the net force is 0. That's why we don't get crushed
अंडर दिस वेट, और इस वेट की हमको आदत भी है और ये वेट उठाने की कैपेसिटी भी है, क्योंकि शरीर के अंदर से देर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अब पता चला ब्लड प्रेशर क्या होता है। इट्स अ काइंड ऑफ एन एबिलिटी टू फाइट विथ एक्सटीरियर प्रेशर so that our body is not crushed.